رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے پوچھنا ہے خوشی کس بات کی، تو آپ نے سب نے مل کر کہنا ہے آمنہ کے لال کی۔ خوشی کس بات کی؟ کیونکہ حضور کی والدہ کا نام تھا حضرت اما آمنہ، ٹھیک ہے جی۔ خوشی کس بات کی؟ سجدی مرشدی، سجدی مرشدی، سجدی مرشدی۔ گرامیہ قدر، جب آپ کے میرے قریب آقا، آپ کے اور میرے قریب آقا آپ کے میرے قریب آقا جب رب کے عرش پر جائیں تو معراج بنتی ہے، اور جب آپ کے میرے قریب آقا سج کر آمنہ کی گود میں آئے تو میلاد بنتا ہے۔ بن سج کر آمنہ کی گود میں آئے تو میلاد بنتا ہے۔ تو گرامی اقدار، کیا لوگ آج ہم سے یہ سوال نہیں کرتے کہ جیسے میلاد آپ جاتے ہو، علماء کرام کو بلاتے ہو، ناخوانوں کو بلاتے ہو، اچھے ساؤنڈ کا انتظام کرتے ہو، لنگر کا انتظام کرتے ہو، کیا ایسے میلاد صحابہ نے کیا تھا؟ میں کہتا ہوں ہاں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آؤ سیاہ ستہ کی احادیث کی کتب، سیاہ ستہ کی احادیث کی کتب حوالہ کے طور پہ نوٹ کیجئے۔ جیسے آج ہماری مساجد کے اندر، ہمارے گھر گھر کے اندر، گلی گلی کے اندر، قریے قریے کے اندر نبی کا میلاد منایا جاتا ہے، نبی کا جشن منایا جاتا ہے، اور اس میلاد کے اندر کسی ایک بزرگ ہستی کی صدارت رکھی جاتی ہے۔ ویسے ہی آج سے کئی سو سال پہلے مسجد نبوی کے اندر ایک میلاد ہوا تھا، اس میلاد کی صدارت خود نبی اکرم نے کی تھی، اور نگرانی حضرت صدیق اکبر، اور صدارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرپرستی حضرت صدیق اکبر، اور سرپرستی حضرت صدیق اکبر، نگرانی حضرت عمر فاروق، سیادت حضرت عثمان غنی، اور قیادت حضرت مولا علی نے کی تھی۔ اور ہمارے ہاں اسٹیج اور ممبر انجمن کے لوگ چاہتے ہیں، انجمن کے لوگ چاہتے ہیں جہاں پر صدارت کسی ہستی کی ہوتی ہے، انجمن کے لوگ چاہتے ہیں، ہمارے ہاں انجمن کے لوگ چاہتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ادھر اس میلاد کے اندر جس ہستی نے ممبر اور اسٹیج سجایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی تھے۔ مل کر پڑھیے، سلامت رہیے جناب، سلامت رہیے۔ اور اس میلاد کے اندر 35 سے 40 اصحاب موجود تھے، 35 سے 40 اصحاب کی موجودگی میں 5 اصحاب ایسے تھے جو حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے، حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ ان 5 اصحاب میں سے بھی چاروں خلفاء، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، لیکن حضور نے حضرت صدیق اکبر کو نہیں کہا، حضرت عمر فاروق کو نہیں کہا، حضرت عثمان غنی کو نہیں کہا، حضرت مولا علی کو نہیں کہا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم اس میلاد کے اندر جو مسلسل حضور کی طرف دیکھ رہا تھا، حضور اس بچے کی طرف دیکھ رہے تھے، اس وقت 35 سے 40 اصحاب کی موجودگی میں جو سب سے کم عمر کا بچہ تھا اسے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں۔ کسی کو نہیں کہا، حضرت علی کو بھی نہیں کہا کہ تم سناؤ نعت، بلکہ جس کو کہا وہ حضرت حسان تھے۔ حضرت حسان تم کرو بات۔ لجپال آئے جگتے نبی لجپال، آئے جگتے نبی لجپال، اور حضرت حسان بن ثابت
सहाबत ने मिलाद पढ़ के सुनाया। इससे पता चला कि आज इंतजामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुश नसीब है आज की इंतजामिया कि जिन्होंने महफिल को सजाया है। मेरी मुराद जुल्फकार साहिब, वकार साहिब, अफरीदी साहिब, नदीम चौहान साहिब, तलहा भाई, आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आज आपने भी वही काम किया है जो हजूर की निगरानी में, हजूर की सदारत में सहाबा ने किया था। आज हम जो काम कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं कर रहे, हम भी मिलाद कर रहे हैं। उधर जो हुआ था वो भी मिलाद था, जो हम कर रहे हैं ये भी मिलाद ही है। और हजरत हसन बिन साबित ने जो पढ़ा वो क्या था? मिलाद। क्या था? मिलाद था। हजरत हसन बिन साबित ने मिलाद पढ़ा। अगर आपकी तवज्जो ना हटी हो तो पढ़ के सुनाओ। आहा, कहिए सुभान अल्लाह। सलामत रहिए जनाब। हजरत हसन बिन साबित ने जो पढ़ा, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वो मिलाद था। अब नहीं जानता कि मुकद्दर जगाने कौन आया है, मुकद्दर सुनाने कौन आया है, किसका अकीदा अर्श पे है, किसका अकीदा फर्श पे है, कौन सुना कर किसी तरह में बैठ कर सुन रहा है, किसके सीने में बात टच करेगी, किसके सीने में बात टच करेगी, किसके सर से बात गुजरेगी। जिन जिन नौजवानों को अपने मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करने की आदत है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने मोबाइलों के अंदर कीड़ा कीजिए। जिन नौजवानों को अपने मोबाइलों के अंदर टेक्स्ट करने की आदत है, वो भी अपने मोबाइलों के अंदर टेक्स्ट कीजिए। मेरा जुमला सुनकर मैं पूरी ताकत, पूरी तवानाई, पूरी तसल्सल, पूरी बरफ्त की पूरी तसल्सल के साथ मिसरा रवाना कर रहा हूँ। मेरा जुमला सुनकर जब भी सारा मजमा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेगा, जब भी सारा मजमा खामोश रहेगा, हजरत हसन बिन साबित ने कहा, व अहसनु मिन कलम तलकत आइन व अजमलु मिन कलम तलिदिन साउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइब का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज तक मेरी आंख ने, आज तक मेरी आंख ने आप जैसा हुसीनो जमील देखा ही नहीं, और आप जैसा किसी माँ ने हुसीनो जमील जना ही नहीं। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है, और ऐसा पैदा किया है जैसा आपने खुद चाहा। आह आह आह, वाह। मिलकर पढ़ लीजिए, मिलकर, कोई भी लफ्ज़ खामोश ना रहे। चार बातें मेरा आप जज कर रहे होंगे। मेरा नकाबत करने का अंदाज कुछ यूं है कि जो लोग आए हो उन तक कोई बात पहुंचाई जाए, उनके पल्ले कोई बात बढ़े, ठीक है जी। मगर ना ये नहीं कि मुझे अशार नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अशार आते हैं, लेकिन मैं क्यों हदीस की रूह के साथ नकाबत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग आए हैं, हमें पता चले हम जो कर रहे हैं ये मिलाद है। हजरत हसन बिन साबित ने जो किया था वो भी मिलाद था। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हम भी मिलाद कर रहे हैं। जो उधर मस्जिद नबवी में हजूर की सदारत में हुआ था वो भी मिलाद था। कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। तो ग्रामीण क़द्र, चार बातें। माशाल्लाह आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलता है जी, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। एक मरतबा साउंड के लिए कहिए सुभान अल्लाह। जो मेरी इतनी बीकी आवाज़ को इतना खूबसूरत बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, थोड़ी सी डिले खोली, बड़ी मेहरबानी। तो ग्रामीण क़द्र, हाँ क्या बात, सलामत रहिए जनाब। चार बातें ऐसी हैं, चार बातें ऐसी हैं कि अगर चार बातों में से एक बात किसी की बात में शामिल हो जाए तो गुफ्तगू करने वाले के जुमलों का वज़न बढ़ जाता है। चार बातों में से एक बात किसी की बात में शामिल तो बात बहुत बड़ी।
से पहले ये देखा जाता है कि कलाम करने वाला कौन है, फिर ये देखा जाता है कि जिससे मुखातिब है वो कौन है, फिर ये देखा जाता है कि जगह जिस जगह पे बात हो रही हो, और चौथा ये देखा जाता है कि अगर बात भी कसम उठाकर कह दी जाए फिर तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। चार बातों में से अगर एक बात किसी की बात में शामिल तो बात बहुत बड़ी, अगर चारों बातें एक ही बात में शामिल, हाय हाय, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। चार बातों में से एक बात किसी की बात में शामिल तो बात बहुत बड़ी, अगर चारों बातें एक बात में शामिल हो जाए तो फिर सोचिए ना बात कितनी बड़ी होगी। कहिए सुभान अल्लाह। जितनी ऊंची आप सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी बड़ी बात होगी। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े ज़ोर वाले लोग बैठे हैं, अल्लाह करीम आपका ज़ोर को सलामत रखे। चार बातों में से एक बात अगर किसी की बात में शामिल तो बात बहुत बड़ी, अगर चारों बातें एक बात में शामिल हो जाए तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखना ये है कि कलाम करने वाला कौन है। अगर कलाम करने वाला अल्लाह हो, जिससे मुखातिब वो रसूलुल्लाह हो, और जगह अर्शे मुअल्ला हो, और बात भी कसम उठाकर कह दी जाए, ऐ महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम, ऐ महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम, ऐ महबूब मुझे तेरे रुखसारों की कसम, ऐ महबूब मुझे तेरे टुटले बालों की कसम, ऐ मीवरिया कस्तूरी अदा जदजार नचोड़िया जुल्फा, मीवरिया कस्तूरी अदा जदजार नचोड़िया जुल्फा, ओ यारो होते हो गए काबा जदजार ने मोड़िया जुल्फा। नबी लजपाल आए जगते नबी लजपाल। मेरा नुक्ता ये था कि हुजूर ने हजरत हसन को ही नात के लिए क्यों चुना। सहाबा और भी थे, मैं इसी बात को आगे लेकर चलूँगा। माशाल्लाह मेरे भाई बाबर साहिब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और मेरे ख्याल में भाई अकबर साहिब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मुझे माइक इनके हवाले करना है। इसी बात को अभी ये सिलसिला टूटा नहीं, अभी ये रब्त टूटा नहीं, रब्त कायम है, सिलसिला भी कायम है। इसी रब्त को मैं आगे लेकर चलूँगा आपके ज़ौक़ के साथ इंशाअल्लाह। मैं यकीन करें अपनी कोई बड़ाई नहीं करने लगा। कल रात मैंने बांडो मांगट पढ़ा, उससे कबल मुझे जेलम जाना था, वहाँ पे पढ़ा। अभी मैंने आपसे पढ़कर इजाज़त लेकर इमरान आसी के साथ मेरा गखन मंडी में प्रोग्राम है। भाई कुछ स्टेटस देखते हैं, इनको मेरे प्रोग्रामों की शेड्यूल का कुछ पता है, तो मैं आपके ज़ौक़ के साथ, अगर आपका ज़ौक़ अच्छा होगा मुझे हौसला मिलेगा, मेरा हौसला बुलंद होगा जी। अब हाथ बुलंद कीजिए, मुझे सदा देनी है। भाई मोहम्मद बाबर सुल्तानी साहिब को नारों की गूंज के साथ तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर।